હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છે બાળકો? અત્યાર સુધી આપણે 14 લેસન છે કમ્પ્લીટ કરેલા છે. એટલે એવું કહેવાય કે તમારા જે પાઠ્યપુસ્તક છે એના અડધા કોર્સ છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે. કારણ કે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 23 લેસન આપેલા છે. એમાં 14 લેસન છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે. અને ખાસ કરીને હવે તમારે 14 લેસન છે અને આજે આપણું 15મું લેસન શરૂ થશે. એટલે 1 થી 15 લેસનના કર્તા, કૃતિ અને સાહિત્ય પ્રકાર આ બધા છે તમારે પાકા કરવાના છે. જો ફરી એકવાર કહું છું કે 1 થી 15 તમારે કર્તા, કૃતિ અને સાહિત્ય પ્રકાર પાકા કરવાના છે. જ્યારે પણ ટેસ્ટ ગોઠવાશે હું તમને એડવાન્સમાં કહી દઈશ ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત કર્તા, કૃતિ અને સાહિત્ય પ્રકારની ટેસ્ટ જ લઈશ. એટલે ખાસ કરીને 15 સુધી તમારે કર્તા, કૃતિને સાહિત્ય પ્રકાર પહેલાં પાકા કરવાના છે. ત્યાર પછી આપણે 1 થી 23 પણ ટેસ્ટ લઈશું. પણ પહેલાં હાફ એટલે થોડો અડધો કોર્સ છે એ આપણે રાખીએ જેથી તમને પાકું કરવામાં તકલીફ ના પડે. એટલે ફરી એકવાર કહું છું કે કર્તા, કૃતિ અને સાહિત્ય પ્રકાર છે એ તમને અહીંયા આપી જ દીધેલો છે તમારી અનુક્રમિકામાં કે પ્રાર્થના ગીત, કહાની, મુક્તક, લેખ, પદ, તો નાટ્યાંશ આ બધા જનો સાહિત્ય પ્રકાર તમને આપેલો છે. છતાં પણ ફરી એકવાર તમારે પાકું કરવાનું છે. અને 1 થી 15 સુધીની ટેસ્ટ છે એ જ્યારે પણ ગોઠવાશે ત્યારે હું તમને એડવાન્સ કહીશ અને તમારે પાકું કરીને રાખવાનું છે જ. એટલે ભૂલવાનું નથી. કારણ કે 4 માર્કના પ્રશ્નની અંદર આ બહુ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે જેનાથી આપણે 1 માર્ક મળી શકે છે. એટલે હવે આપણો પ્રયત્ન એવો રહેશે કે સૌથી વધારેમાં વધારે સ્કોરિંગ માર્ક કઈ રીતે આવી શકે. તો બને એટલો આપણે પ્રયત્ન છે કરશું જેથી આપણે માર્ક્સ છે એ હિન્દીની અંદર સારા આવે. સામાન્ય વિષય છે આપણે આવડે છે, આપણે વાંચવાની જરૂર નથી એવું આપણે માનીને ચાલશું નહીં. કારણ કે જેમ તમારે મેથ્સ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ, સોશિયોલોજી, સાયન્સ આ બધા જ ટોપિક છે તમારે વિષય છે એ જરૂરી છે એમ આ વિષય પણ જરૂરી જ છે. અને આ વિષય તમને સ્કોરિંગ માર્ક સાથે લઈ જશે. સૌથી વધારે આમાં માર્ક આવશે તો તમારી ટકાવારી છે એ આપોઆપ અપ થશે. એટલા માટે અહીંયા જે લેસન હું તમને આપું છું અને પાછું ઘરે વાંચવાનું પણ કહું છું તો તમે ખાસ કરીને ધ્યાનથી વિડીયોને સાંભળો અને ઘરે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરો તો ચોક્કસ હું એવું માનું છું કે પછી તમારે આ વિષય માટે સમય ફાળવવો પડે નહીં. સાથે જ તૈયારી થઈ જાય. એટલે બને એટલા બધા જ પીરિયડ લેક્ચર જોવાનો પ્રયત્ન કરો. ઘણા બધા ઓછા લોકો ટેસ્ટ આપે છે તો ટેસ્ટ આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરો. એટલા બધા હાર્ડ પ્રશ્નો પણ નથી હોતા. તમારા જ પાઠ્યપુસ્તકના પ્રશ્નો છે એને આપણે MCQ રૂપે પૂછીએ છીએ. અને સાથે 7 પ્રશ્નો હોય ને 3-4 તો ગ્રામરના પ્રશ્નો હોય છે. તો જેટલું તમે ટેસ્ટ આપશો 10-10 માર્કની એટલો તમને ઇમ્પ્રૂવ થશે. એટલે તમને પોતાને જ બેનિફિટ છે એમાં થવાનું છે. એટલે ફરી એકવાર આશા રાખું છું કે 1 થી 15 યુનિટ છે એ તમારે ફરી એકવાર શાંતિથી પાઠ્યપુસ્તકને વાંચી પછી તમે બીજા વિષયની મહેનત કરજો. પણ આ વિષયને પણ સાથે રાખજો. 15મું લેસન આપણું છે જનશક્તિ મહાન પદ્ય છે. તેમના લેખક રાંગે રાઘવ છે. તેનો પરિચય લઈએ આપણે. જન્મ સન 1923 और निधन सन 1962. राघव जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है. उसके द्वारा लिखा गया साहित्यिक मात्रा की दृष्टि से ही नहीं गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. रांगे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है.
इसके मुख्य है रामानुज, धरोंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीका जैसे मेघावी प्रबंध काव्य है, पिघलते पत्थर, राह के दीपक जैसी उनकी कविताएं संकलित हैं। प्रस्तुत गीत में कवि रागेय ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। यहाँ पर एक गीत है, साहित्य प्रकार उसका गीत है, और इस गीत में समाज में चल रहे जो जनशक्ति का आह्वान है उसकी बात यहाँ पर बताई है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांतिकारी लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक जैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी भी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न उठता हो तो सबसे ज़्यादा, અને આપણે જોઈએ છીએ કે ભારતની અંદર જ્યારે કોઈ આંદોલન હોય, કોઈને ધમકી આપવાની હોય તો આવા બધા મોરચાની અંદર માણસો છે સૌથી વધારે ભેગા થઈ જાય છે। અને કોઈ સમાજનો પ્રશ્ન હોય, કોઈ કાસ્ટનો પ્રશ્ન હોય, કોઈ વ્યક્તિ સાથે અન્યાય થયેલો હોય તો માણસો એને ન્યાય અપાવવા માટે સૌથી વધારે છે એ ભેગા થઈ અને પ્રયત્ન કરે છે। તો અહીંયા જનશક્તિ, જન એટલે માણસો છે એ મહાન છે એવું કહેવાનો પ્રયત્ન છે અહીંયા। અને બધાના અંદર રહેલી ભારત માતા, દેશ માટે જે પ્રેમ છે એ પ્રેમને જગાવવા માટેનો એક પ્રયત્ન અહીંયા કરેલો છે। દરેકનું ધ્યાન પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર 38 ઉપર। है जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, इस पृथ्वी पर स्वयं बनाएंगे हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, स्वयं को जागो और जगाओ। स्वामी विवेकानंद एक वाक्य है ने, उठो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो। तमे पहला उठो, जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी, तमारू ज्यां सुधी लक्ष्य छे त्यां सुधी तमे मंड्या रहो, एटले प्रयत्न करता रहो। कारण के आपणे आम कहेवाय खरा उठी गया छे, पण आपणी अंदरनी जे शक्ति छे ने ज्यां सुधी आपणे बहार नथी लावता त्यां सुधी कोई कार्य छे सफल नथी थतो। एटले उठो, जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो। कवि भारत माता की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है और ऐसा कहा जाता है कि प्रलय और निर्माण कभी साधारण नहीं होता और उसका सर्जन है वह निरंतर होता रहता है। तो शिक्षक चाहे तो उसका नवसर्जन कर सकता है। तो वही बात उनके अंदर रहेली जो शक्ति है वह अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो, जाओ और दूसरों के जागरूक करो। तुम खुद जागो और दूसरों को भी जागृत करो, क्योंकि हमारे साथ हुआ अन्याय वहाँ से रुक जाता है नहीं, हमारे साथ हुआ अन्याय रुक नहीं जाता और बढ़ावा देता है और दोहराता है, और वही अन्याय दूसरों के साथ भी होता है। इसलिए खुद को जागना है और दूसरों को जगाना है। वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, इस पृथ्वी पर हमें स्वर्ग बनाना है। लोग कहते हैं कि तुम अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कार्य करोगे तो तुम नरक में जाओगे। कहीं आपने स्वर्ग और नरक ऐसी बात देखी है कभी? और जो चले गए हैं उसने भी कभी बताया कि नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा है और यहाँ तो बहुत बुरा है? ऐसी बात आपने कहीं सोची है, समझी है?
तो आप किस प्रकार बता सकते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग है और यहाँ पर नरक है? हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक की ओर ले जाते हैं। यानी अच्छे कर्म करने से हमें फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करने से हमें फल बुरे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। और हमारे माँ बाप के किए हुए कर्म भी संतान को भुगतने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुद के कर्म खुद को तो भुगतने ही पड़ते हैं, पर वही बात स्वर्ग और नरक से यहाँ जुड़ी है। अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी। जैसे स्वर्ग में सब लोग आराम से खा पी कर सोते हैं, बस उसी प्रकार यहाँ पृथ्वी पर भी लोग हैं, उसे खा पी कर सोना है। और एक बार आपको मैं बता दूं कि हम अमेरिका है, चीन है, जापान है, कई ऐसे देश है जहाँ की जिंदगी लोगों को सुबह से शाम तक दौड़ भाग जैसी लगती है। सुबह से शाम काम के पीछे भागते हैं और यहाँ के लोग दोपहर का मिल जाए तो शाम की चिंता नहीं करते और शाम का मिल जाए तो सुबह की चिंता नहीं करते। बस 2 वक्त की रोटी मिल गई और क्या चाहिए? रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, सोने के लिए चारपाई, उससे ज़्यादा लोगों की कोई लालसा नहीं है। तो स्वर्ग जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवानी है। हम नए ढंग से संसार का निर्माण करना है, नए ढंग से। તમે પહેલાં જોજો, હું તમને કહું કે જ્યારે આપણો દેશ ગુલામીમાં હતો, પછી ધીમે 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 જે આઝાદી અત્યાર સુધી તમે જુઓ તો પહેલાંના મકાન કેવા હતા? ગારના, માટીના, આમ તો હું કહું ઘાસના હતા। ઘાસમાંથી ધીમે ધીમે ગારની ઝૂંપડી થઈ, પછી ઝૂંપડા બનાવ્યા, પછી તમે જુઓ ઈંટ ને રેતી ને સિમેન્ટ ને આ બધું સર્જન થયું। પછી એક ઓસરીના મકાન, અત્યારે તમે જો મહેલના મહેલ, જેની તમે રચના કલ્પના ન કરી હોય એટલા સુંદર સુંદર મકાનો છે એ જોવા મળે છે। તો આવા नए ढंग से हमें निर्माण करना है। हम जन जागरण का महत्व अभियान चलाकर लोगों के लगातार चेतना लगी है। जन जागरणનું हमें अभियान चलावવાનું છે અને આ અભિયાનની અંદર માણસોની અંદર નિરંતર એની જ્યોત ચાલતી રહે એવો प्रयत्न करवानो छे। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मजदूर किसान भाइयों जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तुम भी जाग जाओ और दूसरों को भी जगाओ। है मजदूर किसान जागो और जगाओ, तमे जागो और बीजाने पण जगाड़ो। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। है जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। यहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उसमें संतोष की भावना का विकास करना है। लोगों में चल रही जो असंतोष की भावना है, एक दूसरे के साथ का जो बर्ताव है, एक ही घर में आप देखेंगे कि माता पिता की ओर से 2 संतान की वजह से उसमें भी असंतोष होता है कि आप उसे सब चीज़ें ले देते हैं, मुझे नहीं। ऐसी बातें, छोटी छोटी बातों में भी बच्चों को असंतोष होता है। तो उस असंतोष से निकाल कर उसे संतोष की भावना है वहाँ तक उसे ले जाना है। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। पहले हम देखते थे, पहले ज़माने में, कि तब लाइट नहीं थी तो लोग शाम होने से अपने हाथ में मशाल लेकर जाते थे। मशाल क्या है? तो अंधेरा दूर करता है और उजाला है और हमें दिखलाता है। तो ऐसे ही निरंतर मशाल लेकर हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारे सामने अंधेरा है, जो हमारे सामने पर्दा है, उस पर्दे को हटाकर हम दूसरों के जीवन में नए नए मार्गदर्शक पथ है वह हम दिखलाएंगे। है गौरवशाली जनता, तुम चेतो, तुम जागो
और दूसरों को भी जगाओ। फिर आगे, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं, है जीवन अभिमान जागो और जगाओ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। और मैं आपको बता दूं कि किसान रात दिन मजूरी करता है, मेहनत करता है, धूप छाँव बारिश कुछ नहीं देखता है, और खेतों में लहराते हुए जो हरियाली है उसकी मेहनत है वह कड़ी धूप से करता है, परंतु उसका फल क्या है? અને સાચું હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું તો તમે જુઓ કે જે ખેડૂતો છે એ બિચારા તડકો છે, ઠંડી છે કે વરસાદ છે, રાત દિવસ ઘર બાર બધું છોડી અને વાડી ખેતરની અંદર રહી અને પોતે પોતાની આજીવિકા કમાય છે અને એનું ફળ શું મળે છે? જેટલા પ્રમાણમાં એ ઉત્પાદન કરે છે એનું પૂરેપૂરું વળતર એને મળે છે? ના, નથી મળતું. આટલી મહેનત કરે છતાં પણ એને એના મહેનત પ્રમાણેના પૂરતા પૈસા મળતા નથી. તો એક અથાગ પરિશ્રમ છે. તમે ક્યારેક એક દિવસ પણ વાડી ખેતરમાં જઈ અને કપાસ વીણજો, સિંગ વીણજો, મગફળી વીણજો, કઠોળમાં મહેનત કરજો, તમને ખ્યાલ આવશે. ઘરમાં બેસીને પણ ઘરનું કામ પણ નથી થતું. કચરા પોતા, કપડાં, ભણવું, આ બધું કામ છે પણ ઠંડા છાયા આપણાથી નથી થતું. જ્યારે એ લોકો આટલા અસહ્ય ગરમીમાં પણ એ કાર્ય કરે છે, પરિશ્રમ કરે છે. એટલે અહીંયા કહ્યું છે કે મજદૂર, તમે જુઓ કે જે મકાન બનાવતા હોય, જે બિચારા કાળી મજૂરી કરતા હોય, આમ કેટલા રેતીના તગારા છે, સિમેન્ટ છે, ઈંટના તગારા છે, બધું ઉપાડીને છે 5-5, 6-6 માળે લઈ જતા હોય છે. આપણે 5 કિલો ખાંડ છે એ પણ બહારથી ઘર સુધી નથી લાવી શકતા, કારણ તો કે મારાથી ના ઉપડે. અને રાત દિવસ જોયા વગર એ લોકો મજૂરી કરે છે. તો શું મજૂરી પ્રમાણે એને એનું ફળ મળે છે ખરું? કોન્ટ્રાક્ટર છે, માલિક છે, એ સૌથી વધારે ખાય છે અને મજૂરોને એની મહેનતનું ફળ છે એ પૂરેપૂરું પૂર્ણ રૂપે મળતું નથી. મળે છે ખરા, પણ મહેનત પ્રમાણે મળતું નથી. आगे, इस तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है. हम उसका गुणगान करते हैं, हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं. है जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ. हम मानव का निर्माण करते हैं और उसी मानव के निर्माण में हम उसके गुणगान करते हैं, सुख चैन की आशा करते हैं. कई लोग ऐसे हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा कमाते हैं और कई लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उसे उसका इच्छित फल है वह नहीं मिलता है. तो यहाँ पर कहा है कि सुख चैन की हम गर्जना करते हैं और है जनशक्ति, तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ. अंत में, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नावी, अभूत हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत, है प्रदीप गतिमान, जागो और जगाओ. यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रमी जन हैं और हम संसार समय रूपी सागर से असाधारण नाविक हैं. नए जमाने की, आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है वह बन गया है और कहाँ से कहाँ तक टेक्नोलॉजी है वह आगे बढ़ गई है. जो काम 100 व्यक्ति करते थे वह एक अकेला कंप्यूटर करता है.
बड़े बड़े मशीनरी आने से लोग है वह कम हो गए हैं और सारा काम है वह मशीनरी करते हैं। एक व्यक्ति उसे ऑपरेट करके उस सब का नियंत्रण करते हैं। तो आप कभी डिस्कवरी में फूड फैक्ट्री है, ऐसे कहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है और किस प्रकार है लोग उस पर नियंत्रण पाकर काम है वह करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि आज अग्रणी जन का ज़माना है और समय रूपी संसार से हमें असाधारण एक नाविक है, क्योंकि इस पार से उस पार जाने के लिए पहले नाविक को हले से लगाकर वहाँ तक पहुँचना था और आज हम देखते हैं कि अपनी नाव में वह बिना हले से लगाए उस पार भी पहुँच सकते हैं। तो समय रूपी सागर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समय प्रश्न का उत्तर देता है वही विजेता बनता है। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। हम समानता का प्रकाश हम कहते हैं कि आज भारत का विकास हो गया है, भारत देश ने बहुत आगे बढ़ चुका है, नात जात भेद छूत अछूत इन सबको पीछे छोड़ दिया है। फिर भी जो दीपक की ज्योत है उस ज्योत से हमें पूरे समाज का पूरे देश का प्रकाश है वो फैलाना है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिस पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हम ऐसे पुत्र हैं जिसे क्रांति लानी है और इस क्रांति की वजह से सबके मन में एक ही जुनून है कि हमें विजय प्राप्त करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है 10वीं कक्षा में पढ़ने परीक्षा के एग्ज़ाम के दौरान कि मुझे फेल होना है? सभी का एक ही लक्ष्य है कि अच्छे से अच्छे मार्क लाकर मैं पास हो। तो वैसे ही इस संसार में सभी को विजय प्राप्त करना है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, गतिमान यानी जो गति में हो, वही प्रदीप्त यानी प्रकाशमान। तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। तुम खुद जागो और दूसरों को भी उन सुविधाओं के बारे में बताकर उसे भी जागृत करो। हमने देखा यहाँ पर कि जनशक्ति को जगाने का आह्वान यहाँ पर किया गया है, जनशक्ति को संबोधित किया है और खुद जागृत होकर दूसरों को भी जगाना है। क्योंकि हम આપણે એવું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કૂવામાં હોય ને તો અવેડામાં આવે, કૂવામાં જ ન હોય તો અવેડામાં ક્યાંથી આવે પાણી? એટલે પહેલાં તો પોતે જાગવાનું છે, પોતે નીતિ નિયમો ઉપર પાળવાનું છે, પછી બીજાને કહેવાનું છે। આપણે જ કર્મ કરીએ તો બીજાને કહી શકીએ કે નહીં મને ફળ મળ્યું, પણ આપણે જ કર્મ ન કરીએ ને આપણે બીજાને કહીએ તો તમે કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ ક્યાંક જાઓ એટલે તરત તમને કે ના ના હું મારા ઘરમાં વાપરું છું, અમે પણ વાપરીએ છીએ, સારું આવે છે, પછી આપણે એ લઈએ છીએ। તો અહીંયા પણ એમ જ કહ્યું છે કે खुद जागो और दूसरों को भी जगाओ, ताकि लोगों में जो चेतना है वह चेतना जागृत हो सके और लोगों है वह सुख शांति से रह सके। यहाँ पर जनमानस से जागृत होने वाला एक संदेश आए कि पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का हमें निर्माण करना है जिससे लोग सारी सुख सुविधा और शांतिपूर्ण माहौल में रह सके और रहने के लिए लोगों में समानता की भावना है वह प्रसारित हो, यही बात कही है। और अंत में कहा है कि जो किसान और मजदूर है, जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो अन्न खेतों में उपजाते हैं, जो कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे जनता का काम चलता है, कवि उन किसान और मजदूर को वंदनीय कहते हैं, उसे वंदना करते हैं। तो हम देखते हैं कि मजदूर है उसके बिना कुछ शक्य नहीं है और किसानों के बिना जो किसान खेतों में मेहनत करके अन्न को उपजाए नहीं तो हम खाएंगे क्या? इस तरह सबसे ज़्यादा अमूल्य है वह किसान और मजदूर है और उन्हीं की वजह से
हमें इस जनशक्ति को जागना है और दूसरों को भी जगाना है। अंत में यहाँ तक हमारा लेसन है वह ख़त्म होता है और स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं वह आपको होमवर्क में और फेसबुक में भी करने हैं। और अंत में आपको यहाँ कहा है कि आधुनिक हिंदी कविता में प्राप्त हुए जो कर्मवीर है मेरा जीवन है उसे आपको पढ़ना है, जिससे आपको पता चलेगा कि जीवन में कौन कौन से प्रश्न हैं वह हमारे साथ बनाए जाते हैं और उसी प्रश्नों से हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे का लेसन है 16वां चोरी, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको उस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और मैंने कहा फिर एक बार दोहराती हूँ, 1 से 15 है उसका कर्ता, कृति और साहित्य प्रकार है, वह भी आपको एक बार पढ़ लेना है। जब टेस्ट हो तो आपको आसानी हो। धन्यवाद, नमस्कार।